Hello students, how are you all? I am hoping that you all are safe and fine. Yesterday only you had given the test of chapter 8 and yes, many of the students had done a great job but some of the students hadn't given the test. So yes, please students, those who are not giving the test properly, give the test properly from the next time because this is a kind of revision so that you will get the subject more and more and the subject will become more and more easier for you. So next time don't miss the test because from next time I am going to add the marks in my notebook or in my register so that I can conclude all the test marks for your final exams. ठीक है, तो whatever the pattern will be, whatever the decision will be, accordingly I will decide the marks of each of the test in your final exam. So don't miss the test from next time and don't miss the live classes also. So yes, now we are going to start our topic and now we are coming back to our topic that is going on in the class. That is chapter 9, force, work and energy. So yes, in this chapter we have done many of the topics. So today's topic is simple machines and compound machines. So this is the last topic of this chapter. So yes, now we are going to start with the simple machines. So yes, what are simple machines? Simple machines are those machines which makes our work easier and faster. ठीक है, तो it is a kind of machine that makes our work easier and faster. So yes, definitions you have to learn and yes, simple machines which makes our work easier and faster. So yes, I am giving you one example like one day a father and a son was moving by their car and all of a sudden their tire get burst. टायर खराब हो गया, टायर फट गया तो यस फादर को टायर चेंज करना पड़ा. सो उन्होंने क्या लिया, स्क्रू गोज लिया और उससे गाड़ी को लिफ्ट कर दिया. लिफ्ट करने के बाद ही चेंज द टायर एंड देन अगेन रेडी टू मूव ऑन द कार. द सन वॉज गेट सरप्राइज्ड कि हाउ द स्मॉल स्क्रू गोज इज एबल टू लिफ्ट अ ह्यूज कार. इतनी बड़ी कार को एक छोटे से स्क्रू गोज ने कैसे लिफ्ट कर लिया. So yes, then father replied, "Beta, this screw gauge is a simple machine which makes our work easier and faster." तो उसने गाड़ी को लिफ्ट किया और हमारा काम इजी कर दिया, फास्ट कर दिया, हम रुके नहीं. So yes, these are the examples of the simple machines. So many examples are there in your syllabus. We are going to discuss all these examples one by one. ठीक है, simple machines can be lever, can be pulley, can be screw, can be pulley, can be wire gauge. So yes, many of the examples are there. So we are going to discuss all these examples of the simple machine one by one. First one is lever. Yes, this is not the lever जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है लीवर. ये वो वाला लीवर नहीं है. We are talking about lever, a simple machine. ठीक है, तो what is the definition of this lever? Lever is a simple machine. Lever is a simple machine that turns around a fixed point. ठीक है, तो lever is a simple machine which moves around a fixed point. ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड जो एक सिंपल मशीन मूव करती है उसको हम लीवर बोलते हैं. ठीक है, लाइक अ सॉफ्ट ड्रिंक ओपनर. आप लोगों ने देखा है कि एक छोटा सा सॉफ्ट ड्रिंक ओपनर होता है और वो कैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो हमसे खुली नहीं रही होती उसको कैसे ओपन कर देता है. और उसके अलावा सीजर्स, नाइफ्स, टोन्स, मेनी ऑफ द एग्जाम्पल्स आर देयर. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, लीवर के एग्जाम्पल्स हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि लीवर के अंदर एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड कोई भी काम होता है.
तो लीवर इज ऑफ 3 टाइप्स। यस बेटा, यू मे गेट कंफ्यूज इन दिस टॉपिक कि कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि हम किसको किस में लें, किसको किस में लें। एज दिस इज द वेरी इनिशियल पॉइंट, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी ऑफ द एग्जाम्पल विच इज आउट ऑफ द बुक। तो जितने भी एग्जाम्पल आपके बुक में दिए, यू जस्ट हैव टू लर्न ऑल दोज एग्जाम्पल्स। उसके अलावा आपको और कोई एग्जाम्पल बाहर से नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। तो यस, लीवर इज ऑफ 3 टाइप्स। उससे पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए। यस, दिस इज अ स्टोन, अ माउंटेन पीस और एक कोई भी पत्थर हो सकता है, ठीक है। तो यस, इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी सामान पड़ा है जिसको हमें लिफ्ट करना है, और यहां से कोई भी पर्सन उसको लिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो यस, कोई भी पर्सन उसको लिफ्ट कर रहा है। तो यस, लीवर के अंदर 3 चीजें होती हैं। Load, fulcrum and effort. Load means on which we are applying a force. जो चीज हमें उठानी है या जिसके ऊपर हमें काम करना है, that particular thing is known as load. Fulcrum is a fixed point around which the work is said to be done. एक ऐसा fixed point जहां पर काम होता है। It can be in center, it can be in the first position, it can be at the last position. ये कहीं पर भी हो सकता है फिक्स्ड पॉइंट, लेकिन लीवर के केस में एक फिक्स्ड पॉइंट होना जरूरी है, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी इसी टॉपिक के अंदर कि वो पॉइंट जो है फिक्स्ड पॉइंट कैसे कैसे चेंज होता है, ठीक है। लास्ट वन इज द एफर्ट। एफर्ट इज द वर्क डन बाय अ पर्सन और बाय अ मशीन, ठीक है। किसी के भी द्वारा, किसी बाय एनीवन, इफ वर्क इज सेड टू बी डन, तब हम उसको बोलते हैं एफर्ट। इसके ऊपर, लोड के ऊपर काम होता है। फल्क्रम फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अराउंड काम होता है। एफर्ट वो वर्क है जो हम करते हैं, ठीक है। यू शुड क्लियर अबाउट दैट, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज लीवर, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। लोड इज दैट पर्टिकुलर थिंग जिसपे हमें काम करना है, ठीक है। Fulcrum is a fixed point around which the work is happening, जिसके अराउंड काम हो रहा है। Effort is that particular work done which we are actually imposing or which we are doing. जो भी काम हम कर रहे हैं या किसी पे डाल रहे हैं काम, तो वो पर्टिकुलर चीज होती है effort. Is it clear? On the basis of these 3 positions, liver is of 3 types. ठीक है। इन तीनों की पोजीशन किस किस पे है, लीवर उसके बेसिस पे 3 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट क्लास लीवर। बेटा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आपके मैं जब रिटन पार्ट दूंगी तब ये आएगा। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज। हम इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे सो दैट यू विल गेट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो अभी के लिए एज यू आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम, तो इट्स ओके, यू कैन डू और डू आफ्टर मी। मेरे साथ साथ करते रहो, मेरे बात करते रहो, ये चीजें समझ आ जाएंगी। दिस इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। सेकेंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। 3 ही तरह के लीवर होते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट क्लास लीवर मीन्स फल्क्रम इज इन बिटवीन लोड एंड एफर्ट। लोड और एफर्ट के बीच में फल्क्रम होगा, ठीक है। यानी कि जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर में होगा, काम जिस पे हो रहा है और काम जो कर रहा है वो साइड में होंगे। Second one is load is it in between the fulcrum and effort. लोड बीच में हो जाएगा, फल्क्रम और एफर्ट एक एक साइड में होगी। इसके अभी मैं एग्जांपल दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्लास लीवर इज efforts are in between fulcrum and load,
ठीक है। सो बेसिकली वी कैन लर्न इट। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि फर्स्ट क्लास लीवर में क्या चीज बीच में आएगी, दूसरे में क्या चीज बीच में आएगी, तो वो याद नहीं हो पाता है। तो द बेस्ट वे और द की पॉइंट आई एम गिविंग यू टू लर्न दीज 3 लीवर्स इज दिस फ्ली। यू कैन लर्न FLE, फ्ली। तो इस सीरीज में आप इसको याद रख सकते हो। तो आपको याद रह जाएगा फ्ली। फ्ली F पहले, सबसे पहले तो फर्स्ट क्लास लीवर मीन्स fulcrum is in between load and effort. L means load. Load means load is in between fulcrum and effort. And last one is E. E means effort. Effort means effort is in between fulcrum and load. Now we are going to discuss some of the examples of these 3 class levers, which are again very important and which can come in your exam. Like if I am giving you scissors, so this is an example of which class lever. तो आपको बताना होगा कि इज इट योर फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास पेपर में आएंगे। सो नाउ फर्स्ट क्लास लीवर आपके पास क्या समझ आता है, जहां पे फल्क्रम यानी कि फिक्स्ड पॉइंट बीच में होगा। यस, इसके एग्जांपल्स हैं सीसो, सीजर्स, स्पून। आप लोगों ने कभी भी सीसो देखा है? यस, यहाँ पर एक सीट होती है, यहाँ पर एक सीट होती है और बीच में अटैच पॉइंट होता है। सो यानी कि अटैचिंग पॉइंट इज इन द सेंटर सीसो में। तो यस, दैट मीन्स ये एग्जाम्पल है फर्स्ट क्लास लीवर वेयर द फल्क्रम और द अटैचिंग पॉइंट इज इन द सेंटर। ठीक है, एक साइड में एक बच्चा बैठा है, एक बार वो लोड बन जाता है, दूसरे वाला एफर्ट करता है उसको नीचे करने के लिए, और सेकेंड टाइम में दूसरा बच्चा एफर्ट करता है, पहला बच्चा लोड बन जाता है और दूसरा बच्चा उसको पुल डाउन करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। सेम इज हैपनिंग इन सीजर्स। सीजर्स में आपको पता है, ठीक है, सेंटर में हमारे पास फल्क्रम होता है, अटैचिंग पॉइंट होता है, यहां पर हम लोड यानी कि काम कर रहे हैं और यहां पर हम हाथ से चला रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर डूइंग एफर्ट। तो वर्क इज डन हेयर, वर्क इज डन बाय द फोर्स फ्रॉम हेयर एंड फल्क्रम इज प्रेजेंट एट द सेंटर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर. Now move on to second class lever where the load is in between fulcrum and effort. So yes, it can be nutcracker, bottle opener. So yes, nutcracker and bottle opener. अगर आपने nutcracker कभी भी देखा हुआ है तो उसके यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसे होता है, यहाँ पर हम बीच में बेसिकली जो भी हमारा सामान है यानी कि नट्स हैं उसको हम बीच में रखते हैं और ऐसे पीछे से प्रेस करते हैं, है ना। तो हमारा काम हो रहा है बीच में, आगे से उसका ज्वाइंट है जो फल्क्रम है और पीछे से वी आर डूइंग द वर्क. सो बेसिकली लोड इज इन बिटवीन फल्क्रम एंड एफर्ट. So that's why nutcracker is an example of second class lever. Same is with the bottle opener. Bottle opener के अंदर आपके पास स्टार्टिंग में वो पॉइंट अटैच होता है, सेंटर में यू आर ओपनिंग द बॉटल एंड एट लास्ट यू आर doing the effort. So basically these are the examples of second class lever. Now move on to third class lever. Third class lever means effort is in between the load and fulcrum. So इसके examples हैं forceps, tongs, knife, staple machines. तो yes, forceps, tongs. forceps और tongs को आप सिंपल आपके घरों में चिमटा होता है ना जिससे आप खाना बनाते हो, तो ये जिसे चपाती सेकते हैं, तो वो सिंपल चिमटा समझ सकते हो. ठीक है, तो वो ही होता है, वैसा ही होता है टोंग. टोंग इज जस्ट टू होल्ड द मतलब हॉट ऑब्जेक्ट्स और टू होल्ड द केमिकल ऑब्जेक्ट्स. जैसे केमिकल हम जब केमिस्ट्री में कोई प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो हम किसी भी चीज को बाय हैंड टच नहीं करते. सो वी आर ऑपरेटिंग देम विद द या वी आर होल्डिंग देम विद द हेल्प ऑफ द टोंग्स. ठीक है, फोर्सेप्स भी वैसा ही होता है बेसिकली, उसको भी किसी चीज को होल्ड, मेटल को पकड़ना हो तो इसलिए हम यूज करते हैं. तो बेसिकली आप इसको यहां से समझ सकते हो. ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होता है या इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में आप लोगों ने जो भी आपका लोड है, जो भी सामान है, यानी कि चपाती का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे चपाती उठानी है, जो मेरा लोड है वो मैंने यहां से उठाई. सेंटर में मैं एफर्ट कर रही हूँ, मैं उसको पकड़ के सेंटर से मैं उसको होल्ड करती हूँ ना, सेंटर से पकड़ती हूँ, लास्ट से तो नहीं पकड़ती. तो बेसिकली आई एम डूइंग वर्क इन द सेंटर. तो एफर्ट इज इन बिटवीन फल्क्रम एंड लोड एंड एट लास्ट यहाँ पे अटैचमेंट होती है जो हम बोलते हैं फल्क्रम. तो फल्क्रम इज प्रेजेंट एट द लास्ट. So basically these are the examples of the third class lever.
सो आई एम थिंकिंग सो लीवर इज क्लियर। बेटा अगर अभी भी कुछ डाउट होगा तो हम बार बार इसको डिस्कस करते रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, आई एम गोइंग टू शेयर वन वीडियो अलॉन्ग विद इट। आपकी वीडियो के लास्ट में एक रेफरेंस वीडियो में अटैच करूंगी, सो यू कैन क्लियर योर डाउट्स बाय वॉचिंग द वीडियोज ऑल्सो। ओके, सो यस, दिस इज अबाउट द लीवर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पुली।